Hi everyone, welcome to my math channel. So my dear friends, today I'm here to discuss PYQ JEE Advanced 2024. तो यार JEE Advanced 2024 पेपर 2 में जो क्वेश्चंस पूछा गया था वहीं से 5 important questions but toughest questions clear you will get in this video. So my dear JEE Advanced का एग्जाम कॉन्फिडेंस का साथ क्रैक करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको सब्जेक्ट को समझना पड़ेगा. क्रैमिंग करके तो पॉसिबल नहीं है. क्लियर. एंड टॉपिक्स को भी समझना पड़ेगा. इफ यू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स, इफ यू अंडरस्टैंड the subjects, then you feel comfortable in the subject. That time nobody can stop you, nobody can make you fool in the examinations hall. Any type of questions you can solve without any hesitations, without any difficulty. So my dear friends, बेहतर से बेहतर की तलाश करो. मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो. टूट जाए शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा की तलाश करो, वैसा शीशा की तलाश करो. सजदों में क्या हुआ, सदियाँ गुजार गई, किस्मत तेरी बदल दे, तकदीर तेरी बदल दे, तस्वीर तेरी बदल दे, वो सजदा की तलाश करो, वो सजदा की तलाश करो. फिर फर्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट इज जेई एडवांस 2024 पेपर 2 का है. सो दैट मीन्स जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से है. सो दिस इज फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. ठीक है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, सो दैट इज tan ऑफ sin इनवर्स 3/5 minus 2 cos inverse, so this is 2/√5. so this is √5. क्लियर. इसका जो वैल्यू होगा ये क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है. सो दिस इज, सो व्हेनेवर यू विल गेट दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, सो इसको भी टाइम में कन्वर्ट करो, इसको भी टाइम में कन्वर्ट करो. ठीक है, क्लियर. जैसा सपोज देखो, सपोज इफ यू राइट, सो दिस इज इक्वल टू थीटा है. sin inverse 3/5 equal to theta. So this is sin theta equal to 3/5 है. So this is एक triangle. So this is theta. This is 3. This is 5. This is 4 है. So that is tan of. So this is tan inverse 3/4 है. ठीक है. And now if what we'll do here. So this is 2 cos inverse. 2 cos inverse of this. Suppose if you consider 2 cos inverse 2/√5. ठीक है. So that is equal to suppose if you consider, so that is 5. ठीक है. So that means, so this is where cos inverse 2/√5. So that is equal to 5/2 है. So this is cos 5/2. So that is where. ठीक है. So here you can write, so this is, so you can write, so that is where. ठीक है. Clear. So if you can write, so this is suppose 4/. So this ऐसा करो. So this is what cos 5 is equal to 2/√5 है. ठीक है. So this is what 5 है. So this is 2, this is √5, this is 1 है. So that means क्या 2 tan inverse 1/2. So you can write like this. ठीक है. फिर क्या है 2 tan inverse x. 2 tan inverse x का मतलब क्या है ना, tan inverse 2x/1 minus x square. ठीक है. So this is tan inverse. ठीक है. यहीं पे 2 tan inverse x. So this is 2 into 1/2/1 minus 1/4 है. So this is 3/4. So that is what tan inverse 4/3 है. So that means what will get tan of tan inverse 3/4 and so this is tan inverse 4/3. ठीक है. So you have got like this. ठीक है. Clear. So this is अभी tan inverse x का जो फॉर्मूला है tan of tan inverse. So this is 3/4 minus 4/3/1 plus 3/4 into 4/3 है. So that is what 9 minus 16 minus 7/12 and so this is 12. ठीक है. So this is 12 plus 12. So that is 24/12. So that is equal to minus 7/12 है. So my dear friends, clear. So this is so this is 24 है. क्लियर. सो माय डियर फ्रेंड्स, इन पे जो ऑप्शंस है, सो दैट इज बी ऑप्शन इज द राइट चॉइस है. ठीक है. क्लियर. ये सिंपल कैलकुलेशंस है. ये कैलकुलेशंस को आपको अच्छा से देखना चाहिए. आज का जो वेरी सेकंड क्वेश्चन है, लेट एस इज द सेट ऑफ ऑल दोस दिस. क्लियर. सो दिस इज सेकंड क्वेश्चन. लेट एस इक्वल टू, सो लाइक दिस is the set of all those x y. So this is belongs to r cross r. ठीक है. Such that x is positive, such that x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0. ठीक है. And y square, so this is y square is less than 4x. ठीक है. And y square is less than equal to, y square is less than equal to 12 minus 2x. ठीक है. And so this is 3y plus √8x. √8x is less than 5√2 है, 5√8 है. क्लियर.
सो द जो क्लियर रीजन इज अल्फा रूट टू है, क्लियर जो एरिया है सो दैट इज अल्फा रूट टू है। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा आप क्या करोगे, इसका डायग्राम को ड्रॉ करने का कोशिश करो। सो दिस इज लाइक दिस, देखो इसका जो डायग्राम है सो व्हाट विल से, सो दिस इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसका डायग्राम इज दिस एंड यहीं पे क्या हो रहा है देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 12 माइनस 2x है, ठीक है। सो इसका जो डायग्राम है सो लाइक दिस, ठीक है, सपोज ऐसा है वाई स्क्वायर इक्वल टू दिस, ठीक है। ये जो पॉइंट है देखो, ये जो पॉइंट है सो दिस इज 6 0 है, ठीक है, क्लियर। लेकिन यहीं पे और एक जो लाइन है सो दैट इज व्हाट, सो लाइक दिस, ये जो लाइन है इससे आप डिवाइड कर दो, सो दिस इज x by 5 एंड सो दिस इज y by 5 रूट 8 by 3 इज लेस देन 1 है, सो दिस इज 5 0, ठीक है। एंड सो लाइक दिस, ऐसा ऐसा एक लाइन है, ठीक है। तुम्हें क्या फाइंड करना है, तुम्हें इस पॉइंट का एरिया फाइंड करना है, बस दिस, ठीक है, क्लियर। यहीं यहीं से इसका पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये जो पॉइंट है सपोज दिस इज क्लियर, एक्स कोऑर्डिनेट इज 2 है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, सो दिस इज 2 0, ये तो ट्रायंगल हो गया, इस ट्रायंगल का एरिया और यहीं से 0 से 2 रूट एक्स डी एक्स, ठीक है, क्लियर। ये आपको देखना है बस, नथिंग एल्स। सो जो एरिया है रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू इज व्हाट, सो दैट इज 0 से 2, ठीक है, 0 से 2 ये दोनों को सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट 2 आता है, ठीक है। जब ये 2 आएगा सो दिस इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x 8, सो दिस इज 2, ठीक है, क्लियर। सो दैट मीन्स इज व्हाट, ठीक है, सो दिस इज 0, सो दिस इज 2 रूट एक्स, सो दिस इज 2 रूट एक्स डी एक्स प्लस इसका एरिया, ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया क्या, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू 3 इंटू 2 रूट 2, क्लियर। सो ये 5 0 है, ये 2 0 है तो ये लेंथ इज दिस, ठीक है, 2 रूट एक्स, सो दैट इज वेल क्लियर। सो दिस इज 2 इंटू 2 by 3 x to the power 3 by 2 लिमिट 0 से 2 प्लस देखो 2 2 कैंसिल, सो दिस इज 3 रूट 2 है, ठीक है। सो यहीं पे क्या हो रहा है देखो, सो दिस इज 4 by 3 एंड सो दिस इज 2 to the 2 रूट 2, ठीक है। सो दिस इज प्लस 3 रूट 2 है, सो दिस इज 8 रूट 2 by 3 plus 3 root 2 है, so that is what, so this is 17 by 3 root 2 है। हमारा जो एरिया था क्लियर, एरिया यहीं पे गिवन है अल्फा रूट 2 है, सो दिस इज अल्फा रूट 2 इक्वल टू 17 by 3 रूट 2, सो दिस इज अल्फा इक्वल टू 17 by 3 है, बस नथिंग एल्स, आपको कुछ नहीं करना। अल्फा का जो वैल्यू है सो दैट इज 17 रूट 3 है। Now another question, so limit से है, so this is question third, ये सब JEE Advanced 2024 का है। So this is if limit extends to 0 plus, if limit extends to, so this is 0 plus sin of sin kx, sin of sin kx, and so this is cos x plus x, cos x plus x whole to the power 2 by x whole to the power 2 by x equal to e to the power 6, ठीक है। देन व्हाट विल फाइंड आउट, यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू क्या होगा। सो जस्ट इसको पुट करके देखो, तो यहीं पे क्या हो रहा है 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म में हो रहा है, 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म जब होगा एक पे 1 ऐड एंड माइनस कर दो, सो दैट मींस क्या है, सो दिस इज इक्वल टू e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस sin of sin kx, so this is cos x, so this is x minus 1, so this is twice of this, so that is equal to is what, e to the power 6। अभी दोनों साइड से इक्वल कर दो, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, सो दिस इज ट्वाइस ऑफ, अभी ये क्या होगा देखो यहीं पे जब x का जगह पे 0 पुट करोगे 0 by 0 फॉर्म हो रहा है, सो दैट मींस क्या, आप एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करो, इसका जो डेरिवेटिव है 1 है। अभी साइन ऑफ दिस cos ऑफ साइन kx, ठीक है, इनटू इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इनटू k इनटू cos kx, ठीक है, दिस इज माइनस साइन एक्स एंड सो दिस इज प्लस 1, सो दैट इज इक्वल टू इज व्हाट, दैट इज इक्वल टू 6 है, ठीक है, क्लियर। अभी क्या करना है देखो यहीं पे क्लियर, सो दिस इज सिंपली पुट कर दो, x का जगह पे 0 पुट कर दो, देखो ये तो साइन 0 0 है, cos 0 1 है, सो दिस इज k, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज k प्लस 1, सो दैट इज इक्वल टू 3 है। सो माय डियर फ्रेंड्स, k का जो वैल्यू है सो दैट इज इक्वल टू 2 है, बस नथिंग एल्स, यही आपको करना था, यही एग्जाम में पूछा गया था ना। another question, so this is question 4 है, यहीं पे क्या है, let fx equal to, so like this, fx equal to x square sin, so this is pi by x square
ठीक है, सो दिस इज x इज नॉन जीरो एंड सो दिस इज व्हाट जीरो, सो दिस इज x इक्वल टू जीरो है, ठीक है, ये एफ एक्स गिवन है। आपको बोल रहा है देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू है, व्हाट टाइप ऑफ स्टेटमेंट, एफ एक्स इक्वल टू जीरो हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस इन द इंटरवल 1/10 whole to the power 10 to infinity, fx equal to 0 has no solutions in the interval 1 by pi to infinity, here fx equal to 0, here the solutions of fx equal to 0 is infinite, so here 0 to 1 by 10 to the power 10 है, and fx equal to 0 has more than 25 solutions in the interval 1 by pi square, so this is 1 by pi है, ठीक है, क्लियर। सो fx equal to 0 है, fx equal to 0 का मतलब क्या है, x square sin pi by x square, so that is equal to 0 है, ठीक है। सो व्हाट विल से, सो दिस इज sin of pi by x square equal to 0 है, तो sin x equal to 0 मीन्स क्या, pi by x square equal to n pi, ठीक है। सो दैट मीन्स इज व्हाट, pi by x square equal to n pi, सो दिस इज x स्क्वायर का जो वैल्यू है 1 by n है, ठीक है। सो दैट मीन्स x का जो वैल्यू है, सो दिस इज प्लस माइनस 1 by दिस है, ठीक है। सो दैट मीन्स व्हाट विल से, यहीं पे थोड़ा सा आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना है, सो दिस इज 1 by pi स्क्वायर इज लेस देन, ठीक है, लेस देन 1 by रूट n, सो दिस इज व्हाट, सो दिस इज 1 by pi है, यहीं पे एक इंटरवल गिवन है, तो वो इंटरवल को क्लियर हमने अप्लाई किया, सो दैट मीन्स इज व्हाट, सो इट विल गेट, सो दिस इज, ये क्या होगा, सो दिस इज 1 by pi, सो दिस इज 1 by n, सो दिस इज 1 by pi स्क्वायर, सो दैट मीन्स इज व्हाट, ठीक है, पाई स्क्वायर इज लेस देन, सो दिस इज व्हाट, पाई 4 है, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज पाई स्क्वायर इज लेस देन n लेस देन पाई 4 है, ठीक है, यही आपको समझना है। सो दैट मीन्स हमें क्या फाइंड करना था, सो दैट मीन्स ऑब्वियसली यू कैन से, सो दिस इज इन जो है पाई स्क्वायर से पाई टू द पावर 4 का बीच में है, सो दैट मीन्स व्हाट विल गेट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, सो दैट इज व्हाट, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज मोर देन 25, ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज मोर देन 25, ये आपको समझना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। Now another fantastic questions from clear. So this is in differential calculus. So this is f from R to R be a function such that f of x plus y. So this is f of x plus y equal to is what? So this is fx plus f of y. So like this. And so this is for every x y belongs to R, and g from R to R be a function such that g of x plus y equal to gx into gy, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज f of minus 3 by 5, f of minus 3 by 5, so that is equal to 12 है, and so this is g of minus 1 by 3, so that is equal to 2 है। then what you will find out, you will find out इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है, इसका ना f of 1 by 4 plus g of minus 2 minus 8 and g of 0 का वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। सो ए कब ट्रू होता है ना, ठीक है, ए कब ट्रू होगा ना, सो दिस इज इक्वल टू इज व्हाट, ए जब एफ एक्स इक्वल टू के एक्स है, ठीक है, ए कब ट्रू होगा ना, सो जी एक्स इक्वल टू सपोज ए टू द पावर एक्स है, ठीक है, क्लियर। सो दिस अभी यहीं पे क्या है, देखो एफ ऑफ माइनस 3 by 5, ठीक है, सो एफ ऑफ माइनस 3 by 5 एक्स, क्लियर, सो दैट इज 12 है, so that is k into minus 3 by 5 equal to 12 है, so this is what, तो k का वैल्यू क्या है ना minus 20, और g of minus 3, so this is what, ठीक है, a to the power minus 1 by 3 equal to 2 है, so that is what, ठीक है, a cube क्या होगा, so this is minus 1 equal to 8 है, तो a का वैल्यू क्या है ना 1 by 8, ठीक है, क्लियर। सो लाइक दिस अभी हमें क्या क्या फाइंड करना है, देखो, सो दिस इज f of 1 by 4, f of 1 by 4 मीन्स क्या, सो दैट इज k by 4, k का वैल्यू तो minus 20, सो दिस इज by 4 minus 5 है, g of minus 2 है, g of minus 2, क्लियर, सो दैट इज, सो दिस इज minus 2 का पावर है, सो दिस इज a का पावर minus 2, क्लियर, 1 by a स्क्वायर, सो दैट इज 1 by 64 है, ठीक है, सो दिस इज 1 by 64 है, ठीक। हियर a का जो वैल्यू है, सो यू हैव गॉट 1 by 8 एंड हियर g of minus 2, so this a का पावर minus 2, 1 by a square equal to 1 by a square, ठीक है, oh so this is 64 है,
दिस इज 64। अब ये वैल्यू को पुट कर दो, सो दैट इज व्हाट -5 प्लस 64 माइनस 8 एंड g ऑफ 0 का मतलब है तो ये तो 1 है, सो दैट इज व्हाट 64 माइनस दिस, so that is equal to is what, so this is equal to 51। so my dear friends, ये क्वेश्चंस भी 2024 में पूछा गया था।